A very good morning to all of you. So in the last class we are studying the topic that is price determination. So in this we have studied the what is the meaning of the market equilibrium or the price determination. So where the price will be determined in so that there is also two condition has found in that condition, that is equilibrium, excess demand or the excess supply. When the quantity demanded is equal to the quantity supplied, it is called the equilibrium condition, and when the quantity demanded is greater than the quantity supplied, so this situation is called the excess demand, and when the quantity supplied is more than the quantity demanded, this situation is called the excess supply, where the supply is more than the demand of the commodity. Okay, so we will also study the thing, that is how we can overcome from the problem of the excess supply or the excess demand. So we will also discuss these topics. So in today's class we are going to start a topic, that is effect of shift in demand and supply on the equilibrium price and the quantity. Okay, कि कैसे अगर डिमांड और सप्लाई क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई कब शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो रहा है ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, जब क्या है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की सिचुएशन है, और शिफ्ट किस में हो रहा है, डिमांड एंड दी सप्लाई कर्व में. ओके, सो फर्स्टली वी विल डिस्कस विद द डिमांड. ओके, सो वेट अ मिनट. Yes. So effect of demand shift on the equilibrium price and the quantity means अभी इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है. ओके, शिफ्ट मीन्स इधर इट विल गो टू राइट वर्ड और it will shift to the leftward. Okay, we are not talking about the movement along the same supply curve. When we talk about the movement along the same supply curve, so that the changes will occur in the same demand curve. Okay, from point A to point B or from point B to point A. But here we are talking about the shift. So the curve will shift either rightward or the leftward. Okay, so due to change in demand, the demand of the commodity will either increase or decrease. ओके, अगर डिमांड में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर डिमांड में कोई चेंज हो रहा है तो इसका कंडीशन क्या हो सकता है, या तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, ठीक है, हम अपना डिमांड कमोडिटी का ज़्यादा करेंगे, या तो डिमांड कमोडिटी की कम होगी. जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो कर्व हमारा किधर जाएगा, कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ओके, जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्टडीड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, increase in supply, decrease in supply, extension of supply, contraction of supply. So we will already discussed all the things. So if there is change in demand, so the demand of the commodity will either shift rightward or it will shift to the leftward. It will when it increases, so it will shift to the rightward. Okay, and when it is decreases, so it will shift to the leftward. Okay, so you can see here the diagram, but first of all you have to see the what is the condition. Okay, so you have to see the condition if demand of a commodity is rises from D to D1 D1. ठीक है, अब क्या हो रहा है, आप ये डायग्राम देखो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे है, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, D1 और D1, D2 और D2, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है. ओके, दिस इज इक्विलिब्रियम. व्हेन डिमांड कर्व इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. ओके, so this price is P1,
P2, M, M2, M1 and M2. Okay. What we see, that is, we see here, you can see if the demand of a commodity rises from DD to D1, you can see the diagram. If the demand of the commodity is increased from D to D1, okay, this curve, this line हमारी क्या हो गई है, D से D1 हो गई, डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है, so the curve will shift to the rightward, so it will go through the D1. Okay, next line, what it is saying, that rise in price will cause extension of equilibrium price rises from OP to OP1. अब क्या है, प्राइस भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज इंक्रीज इन डिमांड, have you remember, increase in demand shows the relation between the price other than factors affecting the price or quantity demanded and the factors affecting other than the price. हम लोग यहाँ पे relation किसका पढ़ते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहा है डिमांड को अदर देन दी प्राइस. इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड में हम रिलेशन किसका पढ़ते हैं, अदर्स फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्राइस भी OP से OP1 हो जा रहा है. प्राइस क्या हो रहा है, OP से OP1 हो जा रहा है. ओके, यू कैन सी हियर. अभी क्या कंडीशन था कि डिमांड इज़ इंक्रीजिंग और डिमांड कर्व इज शिफ्ट टू द D to D1. सो जो प्राइस हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी P, अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस, अब हमारी प्राइस क्या हो गई है, OP से OP1 हो गई है, OP से OP1 हो गई है. इसका मतलब क्या है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड में इंक्रीज़ हुआ है. मतलब क्वांटिटी डिमांडेड का अफेक्ट वो किससे हो रहा है, जो अदर्स फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं. वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द प्राइस. तो इसके लिए क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. और राइज इन प्राइस राइज कर रहा है. राइज इन प्राइस मीन्स पहले प्राइस OP था, अब प्राइस OP से OP1 हो गया. जब प्राइस OP से OP1 हो गया, इट मीन्स देयर इज़ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में एक्सटेंशन हो रहा है. एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मीन्स देयर इज़ रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड. सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाइड विल also be increases, so that the supply curve is shift from E to E1. वो E से E1 शिफ्ट हो जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग चेंज हम लोग किस में देख रहे हैं, शिफ्ट किस में हो रहा है, डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है. सप्लाई कर्व में कोई भी शिफ्ट नहीं हो रहा है. सप्लाई कर्व में वी आर सीइंग ओनली दी मूवमेंट, हम मूवमेंट देख रहे हैं. जब हम लोग सप्लाई कर्व शिफ्ट देखेंगे तब सप्लाई कर्व इधर लेफ्टवर्ड और दी राइटवर्ड शिफ्ट होगा. सो इस कंडीशन में E से E1 हो जा रहा है. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM1 ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OM से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ फ्रॉम OM से OM1 हो जा रही. मीन्स पहले जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थे तो यहाँ पे थे, बट इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई. प्राइस हमारी इक्विलिब्रियम से शिफ्ट होके OP1 हो गई है, OP से OP1 हो गई है. इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड क्या हो गई है, इंक्रीज़ कर गई है. यहाँ पे हम लोग मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड. इंक्रीज़ इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसके बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं, जो अदर्स फैक्टर्स हैं जो सप्लाई डिमांड को अफेक्ट करते हैं एज वेल एज क्वांटिटी डिमांडेड में. तो और यहाँ पे कोई भी चेंजेस प्राइस में चेंज होने की वजह से नहीं आ रहा है. दैट्स वाई कर्व क्या हो रहा है, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. तो जब जैसे ही प्राइस हमारी OP से OP1 हो रही है, राइज इन प्राइस होने का मतलब है कि सप्लाई में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है. मीन्स अब वो सप्लाई हमारी E से E1 शिफ्ट हो जाएगी. ठीक, अब इस कंडीशन पे क्या होगा, पहले हम OM क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे,
अब क्या करेंगे हम लोग, OM वन क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। पहले हम OM कर रहे थे क्योंकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी, बट अब प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से हम लोग प्रोडक्शन भी क्या करेंगे, OM वन करेंगे, ओके। यही इसकी क्या थी, कंडीशन थी, ओके। सो कंक्लूजन इज बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज, दोनों ही क्या हो गया है, राइज हुआ है। प्राइस हमारी OP से OP1 हुई और क्वांटिटी हमारी OM से OM1 हुई, तो दोनों में ही क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ अ डिमांड ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, डिमांड क्या है कमोडिटी की, वो फॉल हुई है, सो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू दी, अगर हमारी डिमांड फॉल हुई है तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा, कर्व लेफ्टवर्ड ना। तो अब डिमांड कर्व हमारा D से D1 सॉरी D2 D2 शिफ्ट हो गया, D2 D2 शिफ्ट हो गया, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया दिस लाइन। अब हमारा प्राइस OP से प्राइस क्या हो गया है, OP से OP2 हो गया है, OP2 हो गया है। ये क्यों हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड is decreased because here we are studying the relation between the factors affecting the demand other than the price and the quantity demanded, मतलब अदर्स फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारा डिमांड चेंज हो रहा है, दैट्स वाई ये कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब प्राइस हमारा OP से OP2 हो गया, जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब पॉइंट जो सप्लाई का हम लोग एक्सटेंशन में E से E1 जा रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे, E से E2 जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हम लोग अबव पॉइंट से बिलो आते हैं, एक्सटेंशन का क्या होता है, बिलो से अबव जाते हैं। तो E से अब हम लोग E2 आएंगे और हमारी जो डिमांड है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, हम लोग अब शिफ्ट हो जाएंगे OM टू OM2, मतलब हम लोग पहले OM से OM2 पे हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस क्या हो गई है, वो डिक्रीज़ कर गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सप्लाई भी डिक्रीज़ कर जाएगी। उसके वजह से क्या होगा, हम लोग शिफ्ट किस पे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ठीक है। यही क्या कहता है आपका, जब डिमांड शिफ्ट हो रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ गिवन। सो यू कैन सी वंस अगेन द बोथ द कंडीशन ऑफ दिस दैट इज़, सॉरी wait a minute, I will show you. Okay, you can see here the condition is given that कि अगर there is shift of the there is shift in the demand curve when the equilibrium price and quantity is given, तो जब शिफ्ट हो रहा है, हम लोग एक दो कंडीशन पढ़े थे, आपको याद होगा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और चेंज इन और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। हम दो कंडीशन पढ़े थे कि चेंज किस में होगा, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। सेम डिमांड कर्व पे जब मूव होगा तो हमारा जो कर्व है वो ना ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना ही वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, हम सेम कर्व पे क्या होंगे, या तो अबव शिफ्ट होंगे या तो बिलो शिफ्ट होंगे। तो जब हम ये पढ़ते थे तो हम लोग किसके बीच में रिलेशन पढ़ते थे, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, कि प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीजेस। बट अगर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते थे कि व्हेन देयर इज़ शिफ्ट इन दी डिमांड कर्व, जब डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा तो दो कंडीशन होती थी, इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड, ओके, इंक्रीज़ इन डिमांड एंड दी डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड में क्या पढ़ते थे कि व्हेन दी व्हेन दी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन दी अदर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग दी डिमांड अदर देन दी प्राइस। यहाँ पे हम लोग प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन नहीं पढ़ते थे, जो अदर्स फैक्टर हैं, अदर इनपुट्स हैं, इनपुट्स की प्राइस में चेंज हो गया, कोई अदर रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज हो गया, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन में चेंज हो गया, इन सारी की वजह से क्या क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ये हम लोग किस में पढ़ते थे कि शिफ्ट इन दी डिमांड कर। ओके, सो दो कंडीशन होगी, या तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ करेगी या तो डिमांड हमारी डिक्रीज़ करेगी। सो व्हेन द डिमांड विल इंक्रीजेज, सो द कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड और द लेफ्ट वर्ड। बताइए, जब
डिमांड हमारी इंक्रीज़ होगी तो डिमांड कर्व हमारा किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि राइटवर्ड इसलिए शिफ्ट होगा क्योंकि प्राइस हमारी कम हुई होगी, तभी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी ज़्यादा हुई होगी। बट यहाँ पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं डिमांड को उसमें ज़्यादा चेंज आया होगा, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कर रहे हैं। सो व्हेन द कर्व इज डिमांड कर्व इज शिफ्टेड टू D2 D1 means there is change in the shift in the demand curve rightward. अब rightward shift होने का मतलब क्या है, जब डिमांड हमारी when the demand and supply curve intersect to each other at this point is called equilibrium. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, equilibrium. और जिस प्राइस पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं P प्राइस को, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जिस कॉमोडिटी को वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उस कॉमोडिटी और क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो हियर OP is the equilibrium price and OM is the equilibrium quantity and equilibrium point is called E। ठीक, ये सिचुएशन होती है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहाँ होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये तब होती है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, व्हेन द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी intersect the supply curve of the commodity. At that point where they intersect to each other, that point is called the equilibrium, and the price which is determined and in that position, that is called the equilibrium point, and commodity which they buy as well as they sell, that quantity is called equilibrium quantity. Simple. अब कंडीशन क्या आती है, इसमें कंडीशन ये आती है कि इक्विलिब्रियम से हमने ये डिस्कस किया था कि हमेशा ये आइडल सिचुएशन नहीं फाउंड होती है। समटाइम्स हमारी डिमांड इंक्रीज़ भी हो सकती है, हमारी डिमांड डिक्रीज़ भी हो सकती है, हमारी सप्लाई इंक्रीज़ हो सकती है और हमारी सप्लाई डिक्रीज़ भी हो सकती है। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सेस डिमांड, एंड व्हेन द सप्लाई इज़ मोर then the quantity demanded, that situation is called excess supply. So यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिमांड कर्व क्या हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक, सप्लाई कर्व में कोई भी चेंज नहीं है, वो सेम सप्लाई कर्व है, बट जो भी चेंज हो रहा है सप्लाई में क्या हो रहा है, मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर्व, सेम सप्लाई कर्व में ही मूवमेंट हो रहा है। बट डिमांड में क्या हो रहा है, डिमांड कर्व में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, मीन्स वेदर इट इज़ गोइंग टू राइटवर्ड और दी लेफ्टवर्ड। ओके, सो व्हेन इट इज़ गो थ्रू दी राइटवर्ड, so the when curve goes to from DD2 means this DD to D1, that means कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, D1 to D1। इस कंडीशन पे आप देखो क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या है, it is increase in demand or decrease in demand, it will increase in demand, increase in demand हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हम जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट किए तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट अब यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट हो गया। अब जैसे ही हम ये पॉइंट पाए तो हम देख रहे हैं कि हमारी प्राइस भी OP से OP1 हो गई है कि नहीं हो गई है। ठीक, अब प्राइस हमारी OP से OP1 हो गई है, मतलब प्राइस हमारी राइज़ कर गई है, और राइज इन प्राइस का मतलब क्या होता है सप्लाई के पर्सपेक्टिव में, दैट इज़ सप्लाई भी हमारी इंक्रीज़ करेगी, सो दैट देयर इज़ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई का क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, मीन्स E से पॉइंट E1 शिफ्ट हो गया, मीन्स लोअर पॉइंट से अपवर्ड पॉइंट हो गया। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि प्राइस हमारी OP से OP1 शिफ्ट हो गई, OP से OP1 शिफ्ट हो गई। ठीक, ये क्या हुआ, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द extension of supply, and demand curve will shift rightward only because of increase in demand। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया, E से E1 हो गया। इस कंडीशन पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो हम लिए हैं OP से OP1 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज़ हुए हैं, मीन्स
अब हमारा क्या है, हम पहले OP टू OP1 गए हैं, ठीक, OP से OP1 शिफ्ट हो गए हैं, एज वेल एज क्वांटिटी हम क्या किए हैं, OM से OM1 चले गए, ठीक, सिंपल है ना। अब क्वांटिटी हम OM से OM1 चले गए ना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे सो वी विल गेट दी M1, ठीक। इन दैट कंडीशन क्या होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी देखिए OP से OP1 हो गया, इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, तो प्राइस और क्वांटिटी हमारी दोनों ही इंक्रीज़ की है। नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन देयर इज द डिमांड कर्व शिफ्ट टू दी D2 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 मीन्स DD से DD से इट इज़ शिफ्टिंग टू D2 D2, ओके। यहाँ से क्या हो रहा है, वो D2 D2 शिफ्ट हो रहा है। D2 D2 शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ बताइए, डिक्रीज़ इन डिमांड। डिक्रीज़ इन डिमांड होता है तभी तो हमारा कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो जब D2 D2 हो रहा है तो मतलब डिक्रीज़ इन डिमांड, और हमारी प्राइस क्या हो रही है, अब हम यहाँ पे हो रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन हमारी यहाँ पे हो गई है कि जैसे ही डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो ये सप्लाई कर्व इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अब प्राइस हमारी OP से OP2 हो गई है, ठीक। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज़ इन डिमांड, सॉरी डिक्रीज़ इन डिमांड क्योंकि फॉल कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही फॉल इन प्राइस होने का मतलब क्या है, हमारा जो सप्लाई है वो भी फॉल करेगा, ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अब दिस पॉइंट से हम इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम अबव से लोअर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दिस पॉइंट से E से E2 जा रहे हैं, तो अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन यहाँ हो गई है, सो दैट OP से हम लोग OP2 प्राइस हो गई है, और अब जब यहाँ पे हुआ है, जब हम इसको व्हेन वी विल मर्ज इट तो क्वांटिटी हमारी OM2 हो गई, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, OM से OM2 हो गई है, प्राइस हमारी OP से OP2 हो गई। सो दिस इज़ द कंडीशन व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट। ये कंडीशन तब है जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो व्हेन द डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP1 हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM से OM1 हो गई, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज़ हो रहा है। व्हेन देयर इज़ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड इट शिफ्टेड फ्रॉम DD टू D2 D2 विच मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस जो OP से OP2 हो गई और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो OM से OM2 हो गई, दोनों ही फॉल कर गई। जब इंक्रीज़ इन डिमांड हो रहा है, जब कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही इंक्रीज़ कर रहा है। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों ही क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो प्राइस एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोथ विल फॉल। ओके, नाउ आई थिंक यू गेट इट। Now the next one is when effect of supply shift on the equilibrium price and quantity. अभी तक क्या था, इक्विलिब्रियम डिमांड मतलब डिमांड क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, सब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा था इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे। अब क्या होगा कि डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, द चेंज अकर्स ओनली दी सप्लाई कर्व में कर्व शिफ्ट होगा ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, और डिमांड कर्व में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और दी एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ओके, सो ड्यू टू चेंज इन सप्लाई द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इधर इंक्रीज और डिक्रीज। सिंपल सी बात है कि अगर सप्लाई में कुछ भी चेंज होगा तो वो क्या होगा, या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब आपका कोई भी है, आप एकदम स्टैंड स्टिल यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अगर आपको कोई पुश करता है, या तो आप आगे जाओगे, या तो आप लेफ़्ट शिफ्ट होगे, या तो आप राइटवर्ड शिफ्ट होगे, या तो पीछे आने की चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आगे से पुश करता है, ठीक। तो ये सारी कंडीशन क्या है, तो वैसे ही अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है तो या तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या तो वो कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज सप्लाई कर्व क्या होता है,
पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में, तो हमारा कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है, पॉजिटिवली जा रहा है। बट डिमांड क्या होता है, वो नेगेटिवली होता है, तो कर्व हमारा डाउनवर्ड आता है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पे होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। जिस प्राइस पे होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस, जो क्वांटिटी होती है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, सो ड्यू टू चेंज इन सप्लाई, द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल इधर इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होगी तो देन इट विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड, and when it will decrease so it will shift to the leftward. It is explained under the with the help of diagram. Okay, diagram के अंदर हम लोग explain करेंगे। देखिए सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा complicated नहीं है इसमें भी। If the supply of a commodity rises from SS to S1, अब हमारा जो equilibrium condition क्या हो गई, देखिए point E is the equilibrium, OP is the equilibrium price, OM is the equilibrium quantity। अब क्या हो रहा है, कर्व हमारा, सप्लाई हमारी राइज हो रही है। राइज होने का मतलब है इट विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड। गुड, सो द कर्व इज शिफ्ट टू द S1 मीन्स राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, सी द चेंजेस विच अकर्स, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट अब कहाँ पे हो गया, E2 पे हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगा। नो, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई में चेंज, कॉन्ट्रैक्शन ही होगा। सप्लाई में चेंज क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ इन सप्लाई, क्योंकि कर्व में मूव हो रहा है। जब कर्व में मूव हो रहा है दैट मीन्स इंक्रीज़ इन सप्लाई और डिक्रीज़ इन सप्लाई। और जब मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, विच मीन्स द एक्सटेंशन ऑफ द सप्लाई और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो अभी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स। पहले इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ थी, अब इक्विलिब्रियम प्राइस OP से OP2 आ गई है, ठीक, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे ही इंक्रीज़ हो गया सप्लाई में, तो हम क्या जानते हैं, रिलेशन क्या है, इंक्रीज़ इन सप्लाई होने का मतलब है कि सप्लाई जैसे ही इंक्रीज़ हो रही तो प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। जैसे ही फॉल करेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन सप्लाई, देन फॉल इन प्राइस कॉजेज द एक्सटेंशन इन डिमांड। जैसे ही प्राइस फॉल करी, OP से OP2 आई, तो एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड में एक्सटेंशन होगा, विच मीन्स फ्रॉम E से E2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब है कि ये E से E2 हो जाएगा, इट विल मूव एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OM टू OM2। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OM क्वांटिटी से शिफ्ट हो जाएगी OM2 ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। डिमांड में क्या हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है, सप्लाई में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओनली बिकॉज ऑफ दैट देयर इज चेंजेस अकर्स दैट द इक्विलिब्रियम प्राइसेस फ्रॉम OP से OP2 हो जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OM से OM2 हो जाएगी। ओके, सो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, दोनों का रिलेशन अलग हो गया। देखिए प्राइस क्या हो गई, OP से OP2 फॉल कर गई और क्वांटिटी क्या है, OM से OM2 इंक्रीज़ हो गई। जस्ट अपोजिट हो गया, प्राइस फॉल कर रही है और क्वांटिटी राइज कर रही है। नेक्स्ट वन इज़ इफ़ द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, सप्लाई क्या हो रही है, कमोडिटी की फॉल हो रही है फ्रॉम SS टू S2। अब फॉल करने का मतलब है द कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट वर्ड। सो SS टू S2 विच मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस राइज हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम प्राइस देखिए आपका OP से OP1 हो गया, इंक्रीज़ हो गया बिकॉज ऑफ फॉल इन सप्लाई। सप्लाई क्या हो गई है, फॉल हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी फॉल हो रही है तो प्राइस क्या हो रही है, वो राइज कर रही है। राइज इन प्राइजेस कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे ही प्राइस राइज होगी, इसका क्या मतलब है, कॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो E से पॉइंट अब E1 जा रहा है, मीन्स इट इज़ शिफ्टेड टू द E टू E1। ओके, सो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम OM टू OM1। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, OM से OM फॉल हो रही, OM1, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ रही है, OP से OP1 इंक्रीज हो रही है। ओके, सो इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, वो
rise होगी और the equilibrium quantity will be the rises. Okay, so what we have studied in today's class, the effect of the demand shift on the equilibrium price and the equilibrium quantity, as well as effect of the supply shift on the equilibrium price and the equilibrium quantity. It's all about your today's class. We will continue further in the